اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا، آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں میرے اور آپ کے، پوری کائنات کے، بلکہ کائنات کے خالق و مالک و رازق اللہ جل جلالہ کے محبوب پاک، کائنات کے محبوب پاک جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ نور مجسم ساقی کوثر صاحب جود و سخا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، اور آپ سب کو مبارک بھی ہو کہ حضور نبی رحمت کی ولادت باسعادت کی۔ آج ہم بات کریں گے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا ایک حدیث میں وارد ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق فرمایا، پیدا فرمایا؟ تو میرے اور آپ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اولا ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میں محمد کے نور کو پیدا فرمایا۔ یعنی ابتدا میں نور تھا، جب اللہ تھا تو نور تھا، تو اس نے اپنے نور سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، ان کا ظہور فرمایا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی نعت پڑھوں۔ میرے نبی نے فرمایا، حسان میرے ممبر پر آ جاؤ۔ حضرت حسان ممبر رسول پر تشریف فرما ہوئے۔ اب کچھ اشعار ایسے تھے جس کا میں ترجمہ اور مفہوم بیان کرتا ہوں۔ حضرت حسان عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری آنکھ نے شرق اور غرب دیکھا، شمال اور جنوب دیکھا، مگر یا رسول اللہ آپ سا حسین چہرہ میری آنکھوں نے کوئی نہیں دیکھا، کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا ہی نہیں کیا، یا رسول اللہ آپ جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کو اس کی بات اتنی پیاری لگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ فرمایا اور دعا کی، اے اللہ حسان کے منہ کو سلامت رکھ کہ جس سے میں محمد کی تعریف نکل رہی ہے۔ اور دوسرا شعر حضرت حسان عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرا عشق، میرا وجدان کہتا ہے کملی والے کہ جب اللہ نے آپ کو بنایا ہوگا نا تو اللہ نے آپ کو پوچھ پوچھ کر بنایا ہوگا۔ اے میرے سونے حبیب بتا میں تجھے کیسا پیدا کروں، کیسا بناؤں؟ اور یقیناً حضرت میرا عشق کہتا ہے اللہ نے آپ کو پوچھ پوچھ کر بنایا ہے۔ میرے اور آپ کے حضرت فرمانے لگے، ہاں ہاں حسان اللہ نے مجھے ایسے ہی تخلیق فرمایا ہے، اور جس کا مفہوم اور جس کا یہ میں بیان کرتا ہوں ایک مکالمہ کہ کیسے پیدا کیا ہوگا، یقیناً ہمارا وجدان کہتا ہے، ہمارا عشق کہتا ہے اللہ نے محبوب سے ضرور پوچھا ہوگا، محبوب کے نور سے پوچھا ہوگا، اے میرے نور ازلی و ابدی نور، اے کملی والے، اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا میں آپ کو کیسا پیدا کروں، کیسا بناؤں؟ تو اب بتا۔ تو میرے اور آپ کے حبیب نے یقیناً اللہ سے یہ کہا ہوگا، یا اللہ مجھے پیدا بنانا ہے تو ایسا بنا، اے اللہ چہرہ میں اٹھاؤں، اللہ ودوہا تو فرما دے، اللہ زلفے میں سواروں، واللیل اذا یغشا تو فرمائے، اللہ سرما میں پاؤں، ما زاغ البصر تو فرمائے، اللہ مسکراؤں میں یاسین والقرآن الحکیم تو فرمائے، اللہ بولوں میں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی تو فرمائے، اللہ مجھے بنانا ہے تو ایسا بنا ہاتھ میں اٹھاؤں، ید اللہ فوق ایدہم تو کہیں، اللہ انگلیاں میں ہلاؤں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما تو فرمائے، اے اللہ میں کملی میں لوں، یا ایھا
अय्युहल मुज़म्मल तू फरमाए, या अय्युहल मुदस्सर तू फरमाए। कदम मैं उठाऊं, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद कह के कसम तू खाए। अल्लाह मुझे बनाना है, ऐसा बना दे कि मौला मुझे अपने देखें या गैर देखें, जो भी देखे मुझे देखकर कह दे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं यकीनन जी हमारा विजदान कहता है, और हजूर पाक ने अल्लाह से जो फरमाया अर्ज किया, और अल्लाह ने यकीनन अपने महबूब को ऐसे ही नक्शो निगार और ऐसे ही अपने हुस्न जमाल पर रसूल अल्लाह को पैदा फरमाया कि खुद खुदा ही उसका शहदा हो गया, खुदा ही उसका आशिक हो गया। अरे ऐसा मेरे और आपके महबूब को अल्लाह ने बनाया। अरे क्यों ना हो। वो एक शेर है कि कमली वाला हसीना दा बादशाह ते जिदा पाया ते किसी ने पाया ही नहीं। हो कमली वाला हसीना दा बादशाह जिदा पाया ते किसी ने पाया ही नहीं। वो 1,24,000 विचों ऐसा शान वाला नबी ते आया ही नहीं। वो दुख झर के काफरानों भी लाया सीने, ऐसा सबर ते किसी नबी ने पाया ही नहीं। और दुनिया लभदी है उस दी मिसाल सजनों, और जिदा सानी ते किथे साया ही नहीं, जिदा सानी ते किथे साया ही नहीं। अरे मेरा और आपका महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये माह रब्बुल नूर, माह रब्बुल अव्वल का मुबारक महीना आया, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इसमें अल्लाह ज़ात के मालिक, इसमें अल्लाह ज़ात के वाकफ, और इसमें अल्लाह ज़ात के बामुसम्मा रसूल यानी महबूब खुदा के आने का वक़्त आया। आने का यानी ये रब्बीउल अव्वल का महीना और मुबारक दिन 12 रब्बीउल अव्वल बरोज़ सोमवार सुबह फजर का वक़्त 4 से 5 बजे के दरमियान का टाइम। और इस वक़्त मेरे और आपके महबूब की आमद हुई। रवायतों में लिखा है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताबों में लिखा है अपने महबूब को दुनिया में भेजना था, तो रात अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करती है, या अल्लाह तेरा नबी दुनिया में जाए तो रात का वक़्त हो। दिन आ गया, कहता है नहीं मौला, जब तेरा महबूब दुनिया में जाए दिन का वक़्त हो। अल्लाह ने पूछा क्यों? दिन और रात ने जवाब दिया। रात अर्ज करती है मौला अगर तेरा महबूब रात को दुनिया में आया तो मैं फखर से कहूंगी कमली वाला रात को है। क़यामत तक के लिए लोगों में ये बात हो जाएगी कि कमली वाले रात को दुनिया में तशरीफ लाए। और दिन कहने लगा या अल्लाह अगर दिन को आए तो ये मेरे लिए फखर और एजाज की बात है कि तेरा महबूब दिन के वक्त दुनिया में तशरीफ लाया। अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने तुम दोनों की दुआओं को कबूल फरमा लिया। अल्लाहु अकबर। हबीब का सदका है, खाली मोड़ना नहीं है, खाली नहीं जाओगे, जाओ। दोनों की दुआ कबूल हुई। वो कैसे हुई कि तारीखों में लिखा है, किताबों में लिखा है, जब मेरे और आपके हबीब दुनिया में तशरीफ लेकर आए उस वक्त रात का वो पहर था कि उस वक्त रात जा रही थी और दिन आ रहा था, यानी रात और दिन दोनों का वक्त था। अल्लाह ने दोनों को दरे मुस्तफा से खाली नहीं लौटाया। अल्लाहु अकबर। अरे मेरे और आपके महबूब दुनिया में आए और जब 12 रबीउल नूर का ये मुबारक दिन आया ना, तो ये भी किताबों में लिखा है कि 3 झंडे, ये मोतबर किताबों में लिखा हुआ है कि 3 झंडे दिए गए जो हजरत सय्यदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, मैंने देखा एक शरक में, एक गरब में और एक खाना काबा की छत पर लगा हुआ। मैंने देखा कि वो फरिश्ते उसको लहरा रहे हैं। और ये मुबारक दिन बरोज़े सोमवार सय्यदा आमिना फरमाती हैं कि दाई का इंतजाम ना था और विलादत का वक़्त था। मैंने क्या देखा? 4 औरतें आसमान से जमीन पर तशरीफ लाती हैं। एक के हाथ में सोने का तबक, दूसरी के हाथ में जमुर्द का लोटा, तीसरी के हाथ में बहिश्ती इतरदान, चौथी के हाथ में सफेद हरीर। मैंने चारों से पूछा ए नेक खूबसूरत बीबियों आप कौन हो? तो सय्यदा आमिना फरमाती हैं जब मैंने पूछा तो एक बीबी नूरानी चेहरे वाली बोली कि मेरा नाम हजरत हव्वा है, एक हजरत हाजरा, एक हजरत सारा और एक हजरत मरियम। ये 4 मुकद्दस बीबियां मेरे और आपके नबी की दाई बनकर दुनिया में तशरीफ लाई। और हजरत आमिना से फरमाया आमिना तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझको तमाम जहानों की औरतों पर फजीलत अता फरमाई। अब तेरे और अगले और पिछले सारे जहान वाले आमिना तुझे सलाम करेंगे और तुझे बरकत वाली कहेंगे।
सज्जिदा आमिना फरमाती हैं, जब मेरे और आपके नबी की विलादत बासआदत का ज़हूर मुबारक का वक़्त करीब आया, मैंने क्या देखा, आसमान से एक नूर आया और जो मुझ पर छा गया, और उस नूर के छाने के दौरान हज़रत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का ज़हूर हो जाता है। फरमाती हैं, जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, आप हज़रत नूर के लहाफ में लपेटे हुए थे। पाक बीबियों ने उठाया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिहाफ दिया, गुस्ल दिया, खुशबू लगाई। अल्लाहु अकबर। खुशबू लगाकर सज्जिदा आमिना फरमाती हैं कि मेरे और आपके नबी ने के लब हिल रहे थे। फरमाती हैं, मैंने कान नज़दीक किए, रसूल अल्लाह दुआ फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले रखना। दुनिया में आए, उम्मत का ख्याल आ गया, अभी उम्मत बनी नहीं है, पर रसूल अल्लाह ने दुनिया में आने सबसे पहले जो अल्लाह ताला से दुआ की, अपनी उम्मत के लिए दुआ की। और जब मेरे नबी दुनिया में आए, खाना काबा मक्का शरीफ बैतुल्लाह में 360 बुत पड़े थे। जिस दिन रसूल अल्लाह दुनिया में आए, उसी वक़्त वो 360 बुत वो ऊंधे मुंह जमीन पर गिरकर सारे टूट गए। और फारस में आग 10,000 साल से वो आग की पूजा कर रहे थे, यकदम वो आग बुझ गई। और सहाबा फरमाते हैं, यानी उस जमाने के जो लोग थे, जो आने वाले वक्त में सहाबा बनना था, और खसूसन मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, वो फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक़्त आसमान ज़मीन के करीब हो गया था। ये जनाब अबू तालिब जो मौला अली के वालिद हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, कि ज़मीन के करीब हो गया, और एक नूर का हाला जो है सज्जिदा आमिना और अब्दुल्ला के घर को उसने अपने लपेट में लिया हुआ है, और आसमान से ऐसे है जैसे नूर की रहमत की बारिशें नाज़िल हो रही हूँ। ये फरमा रहे हैं हज़रत अबू तालिब जनाब इमरान अलैहिस्सलाम, ये हुजूर की आमद पर जो अल्लाह ताला ने रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाई हैं। सज्जिदा आमिना फरमाती हैं कि मेरे और आपके नबी जब पैदा हुए, मैंने आलम बातन में देखा, रूहानी तौर पर देखा, तमाम अंबिया मेरे घर के इर्दा गिर्द 1,24,000 कमो बेश पैगंबरान खुदा आ रहे थे, और मेरे घर के बाहर खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ रहे थे, यानी मेरे और आपके इमाम नबी को सलाम पेश कर रहे थे। ये किताबों में लिखा है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत आम बच्चों की तरह विलादत ना थी, बल्कि जब एक किताब में ये लिखा, मैंने पढ़ा कि जब रसूल खुदा ज़हूर हुआ, चादर में लपेटे गए, लिहाफ में लपेटे गए, फौरन अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा कि मेरे महबूब को एक तख्त पर बिठाया जाए, और रसूल अल्लाह को तख्त मसनद पर बिठाया गया, तकिया लगाया गया, रसूल अल्लाह को मसनद पर बिठाकर हुक्म हुआ, इसको रुए ज़मीन की सैर कराई जाए, ताकि मेरे हबीब से दुनिया की कोई शय मख्फी ना रह जाए। इस तरह मेरे और आपके महबूब को अल्लाह ताला ने वो इज्जत और जलाल और वो मुकाम और मर्तबा रिसालत माब को अता फरमाया कि जो किसी भी नबी और वली को ना मिला था। आखिर कौन आया दुनिया में, इसमें अल्लाह ज़ात का वारिस आ गया। अरे कायनात के फुकरा का बादशाह, कायनात के पैगंबरों का बादशाह, वलियों का बादशाह, पूरी कायनात का बादशाह यानी मोहम्मद अरबी दुनिया में तशरीफ ले आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दाई हजरत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा, जो बनु साद कबीले से थी, उनके हवाले कर दिया गया था हजरत हलीमा को, क्योंकि उधर से यहूदी भी को पता चल गया था आखिरी नबी आ गया, और वह माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मेरे और आपके महबूब को कत्ल करने के लिए वो बार बार मक्के आ रहे थे। तो उस वक्त प्रोग्राम ये बना के हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा सादिया के हवाले किया जाए। अब जनाब सज्जिदा हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैं रसूलुल्लाह को लेकर अपने घर आ गई। फरमाती हैं वो झोंपड़ी बनी थी, कखों की झोंपड़ी थी, ऊँटनी थी, दूध नहीं देती थी, बकरियां लागर कमजोर हो गई थी, गुर्बत थी। फरमाती हैं इधर कमली वाले महबूब मेरे घर में आए, अल्लाह ने गुर्बत को मिटा दिया, बकरियां तरोताजा हो गई, दूध देने लग गई, ऊँटनी भी तरोताजा हो गई। फरमाती हैं कि गुर्बत थी अमीरी में बदल गई, वो मेरी झोंपड़ी थी महल बन गया।
अल्लाह ने इतना नवाज दिया। फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी बच्चों की तरह ना थे, बल्कि नबी जितना बच्चा 6 साल में बढ़ता था, रसूल अल्लाह 6 महीने में बढ़ते थे। और हजरत हलीमा फरमाती हैं मैं रसूल अल्लाह को झूले में लटा देती और झूला एक बार झुलाती तो पूरा दिन झूला झूलता रहता जितनी देर मैं काम करती। एक दिन अर्ज करती हैं कि मैंने पूछा कि या अल्लाह कौन है जो तेरे महबूब का इस नूरानी चेहरे वाले का झूला झुलाता है? तो फरमाती हैं कि मैंने क्या देखा, अल्लाह ने हिजाब मेरी आंखों से उठाया, मैंने देखा एक तरफ जिब्राइल बैठी हैं और दूसरी तरफ एक नूर की रस्सी है जो आसमानों तक जा रही है। यानी एक तरफ से जिब्रील हुलारा दे रहे हैं, दूसरी तरफ से रब्बे जलील हुलारा दे रहे हैं। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह आए, अल्लाह ने मेरी किस्मत को बदल दिया, बल्कि रसूल अल्लाह तो आए तो कायनात की किस्मत बदल गई। मेरे भाइयों, वो नबी आया कि जिसके आने से सारे अंबिया ने जिसकी पेशन गोइयां की थी और जिसके आने से पूरी कायनात में दीन मुकम्मल हो गया, दीन इस्लाम छा गया। मेरे और आपके नबी ने फरमाए, लोगों मैं आखिरी नबी हूँ, खुदा का महबूब नबी हूँ, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, अब क़यामत तक मैं मोहम्मद की नबूवत चलेगी। तो मेरे भाइयों, ये रसूल अल्लाह की आमद का वो मैंने लम्हात बयान किए हैं, खूबसूरत लम्हात बयान किए हैं। और जब इसमें अल्लाह ज़ात का वारिस जनाब मोहम्मद अरबी दुनिया में आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी दुनिया को इसमें अल्लाह ज़ात के नूर से मुनव्वर कर दिया और हम जैसे गुनहगारों की बात बन गई। अरे हम जैसे गुनहगारों को उस कमली वाले ने कबूल फरमा लिया, हमें अपना उम्मती, अपना गुलाम बना लिया। ये काफ़ी है, हम हजूर के गुलाम हैं। ये बात हमारे लिए फख्र है, हम हजूर के उम्मती हैं और नबी पाक के गुलाम कहलाते हैं। अरे ये तो रिसालत माप की नजर करम हुई, याद रखें हजूर की नजर करम हुई थी आलम अरबा में। जिस पर नजर रहमत हजूर फरमाते गए थे, आज वो कमली वाले का कलमा पढ़ने वाला उम्मती बन गया। अरे हमारी खुशकिस्मती, हम रिसालत माप के गुलाम हैं और यह गुलामी दुनिया और आखिरत में मेरी और आपकी बख्शिश का समान है, बख्शिश का जरिया है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हम सबको हजूर पाक की मोहब्बत, हजूर पाक की गुलामी अता फरमाए और हजूर की विलादत का घर घर चर्चा करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।